So, welcome to the first day of our 5 days program, that is Mission Join Indian Army. So, this program is basically for you all youngsters because I keep getting calls, n number of calls, and SMS and Insta messages on LinkedIn messages. Guiding one student at one time is really difficult for me. बच्चा इतना time नहीं निकल पाता है. So, that is why I have come up with this program, 5 days program. And let me tell to each one of you first of all, when it comes to my army, ठीक है, अगर मैं फौज की बात करती हूँ, इट्स नॉट अ जॉब बच्चों. ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. So when it comes to army, it's a way of life. And more than just the written exam, they assess your personality. So more important is your personality part, which cannot be built in 10 days or 15 days or 1 month of coaching. That is why I keep guiding students. So when you wear a uniform also na, आपका 2 इंच कद अपने आप बढ़ जाता है. I hope you all will agree with me. Because the pride you take in wearing that uniform, because kahin na kahin, you cannot compare it with any corporate job. So if you are here and if you like the lifestyle of corporate world, if you like the lifestyle of all big malls, corporate life, then this is not a profession for you, mere bachcho. But the only thing which I want to tell you, if you really love that respect that gives meaning to your life, then defense services is a right thing for you. मैं हमेशा हर बच्चों को बोलती हूँ, ठीक है ना बेटा, नौकरी करनी है तो आने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू रियली वांट अ वे ऑफ लाइफ, सर्टन वे ऑफ लाइफ, आप फौजियों को कहीं देखोगे ना, भीड़ में अलग नजर आ जाते हैं. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, बिकॉज जब वो सेलेक्ट भी करते हैं ना, तो दे लुक फॉर सर्टन ट्रेट्स कि ये तो होने ही चाहिए, उसके बाद हम इनको ट्रेन कर लेंगे. सो आज मैं उसी चीज की बात करूंगी. सो व्हेन इट कम्स टू आर्मी ऑल्सो, आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट आर्मी. They don't know anything about Air Force, defense services. So in today's session, I will let you all know what are the different kinds of entries, what army offers you first of all. ठीक है, that is also very important. What are different course which you can join over there. बहुत लोगों के घर में कोई नहीं होता है, तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता. दिस इज अ वेरी बेसिक फर्स्ट डे, सो आई विल बी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स. In case if you have any doubt, please write it in the chat box. I will take at the end of the session. Is that clear to everyone? ठीक है. Now Yes, coming to ma'am. the lifestyle of army, every day will be a new day. No one posting will be the same posting. So in my life, 5 years I have served with Forge. Two posting. I have been to Tejpur, then I have been to Dehradun, and my husband is 22 years of services. और उनकी 20 पोस्टिंग. मेरे बेटे का 10th क्लास में 15th स्कूल. सो एवरी डे इज गोइंग टू बी अ न्यू डे. तो एडवेंचर चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, देन आर्मी विल गिव यू दैट. ठीक है, लाइफस्टाइल अमेजिंगली गुड. यू गो टू एनी कैंट बच्चों, सुकून अपने आप मिल जाता है. दिल्ली की कितनी भी भीड़ भाड़ में आप रह रहे हो, द मोमेंट वी विल एंटर द कैंट ना, वी विल फील ओ माय गॉड, दिस इज अ सेफ स्पेस फॉर अस. And that is what, and it gives you not only this, I think this is the only organization bacha where you are not only growing professionally, you are growing personally also. Because in army, it is not a professional life is not different from your personal life. Your family also equally become the part of this organization. They looks after you. For example, I myself was in army, so they looked after my family also, my parents also. And now I'm a married to an army officer, so they treat me like queen. ठीक है, तो फौज के अंदर हमेशा वो पूरा ख्याल रखते हैं. एवरीथिंग इज अवेलेबल वेयर एवर यू विल बी गोइंग. यू विल बी गेटिंग द हाउसिंग अकोमोडेशंस, योर मेडिकल एक्सपेंसेस विल बी फ्री, यू गेट ऑल अदर स्पोर्ट्स. आपका जो होता है द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, बाहर अगर आप रहोगे वहीं उसी चीज के आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं, और फौज में अपने आप वो आप सब चीजों को मिलती हैं. फाइनेस्ट ऑफ द क्लब्स आर इन आर्मी.
स्पोर्ट्स, एडवेंचर, मेडिकल, फैमिली के लिए, आपके लिए सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, कैंटीन फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, एजीआईएफ की, ठीक है, एंड मोर देन दैट यार हेल्दी एनवायरनमेंट आजकल कहाँ रहने को मिलता है, ठीक है. सो व्हेन इट कम्स टू आर्मी, सो आर्मी इज अ फैमिली बियॉन्ड योर ब्लड. बच्चों, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, केयर है, ब्रदरहुड की जो फीलिंग है, और किसी प्रोफेशन में नहीं है. आप कितना पैसा कमाना कॉर्पोरेट में मिल जाएगा यार, ठीक है, बट एवरीथिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस. बट इन फौज इट्स ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप्स. लोग सही में आपके लिए जान देने को तैयार होते हैं. सो इट्स नॉट अ जॉब बच्चों, इट्स अ कॉलिंग, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है. अगर आप इंटरेस्टेड है देन ओनली ट्राई फॉर इट, ठीक है. तो अब अगर आप किसी भी फौजी से कभी पूछते हो ना बच्चों हाउ मच यू आर अर्निंग, दे विल ऑलवेज गोइंग टू टेल यू दैट आई एम अर्निंग 100 सल्यूट्स इन अ डे, एंड दैट इज व्हाट इज फौज ऑल अबाउट, ठीक है. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पैसा मिल जाता है, पर आर्मी के अंदर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपको ऑनर मिलता है, आपको वैल्यूज मिलती है, ठीक है. आपके कंधों पे जो स्टार बनते हैं और वो जो ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं ना, तो ऑल ऑफ द सडन आपकी आइडेंटिटी, योर ओन आइडेंटिटी बिकम्स योर कंट्रीज आइडेंटिटी. आप अपनी आइडेंटिटी अपने देश के साथ लगाने लग जाते हो, ठीक है. लाइफस्टाइल बहुत ही इंस्पायरिंग है बच्चों. कैंटोनमेंट की लाइफ बहुत अच्छी होती है, गुड सैलरी है आज के टाइम में, कमी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको मर्सिडीज और सॉलिटेयर से नीचे बात ही नहीं करनी है तो अलग बात है, अदरवाइज ठीक है. एक हैप्पी सेटिस्फाइंग लाइफ के लिए बेस्ट है. एंड मोर इंपॉर्टेंट बच्चों, फिट लाइफ, ठीक है. आर्मी हमेशा इंश्योर करती है दैट यू स्टे फिजिकली फिट थ्रू आउट योर लाइफ. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है. सो दैट इज देयर. नाउ coming to the very basic first thing, find sources of information. For example, if you want to join Indian Army, Salam, are you able to understand me? I hope you, Janvi, समझ आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Okay, perfectly fine. So in case if you want to know the information, please whenever you type it on Google, आपको 10 blogs खुल जाते हैं, ठीक है ना, 10 tabs खुल जाते हैं. Don't go on that. You need to go on the official website of Indian Army, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स. इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in. Is that clear to everyone? Please take the entire information from there, and humble request to each one of you, today's your homework is please visit that website thoroughly. Everything is available on that. आपको और कहीं से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. joinindianarmy.nic.in. फाइन. फिर जो सेकंड है दैट इज इंडियन नेवी के लिए, joinindiannavy.gov.in. सिमिलरली एयरफोर्स की भी है, जो indianairforce.nic.in. ओके, ये मैं आपको ये व्हाट्सएप भी भेज दूंगी. प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, जो मैंने आज ग्रुप क्रिएट किया है. मैं अभी उसको व्हाट्सएप कर देती हूँ आपको. राधिका व्हाट्सएप कर देना ग्रुप का. उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बेटा. आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड फॉर टेरिटोरियल आर्मी बेटा, ठीक है, तो जो भी आपकी नोटिफिकेशंस आती हैं वो आती है territorialarmy.in पे, ठीक है. और जो गवर्नमेंट वेबसाइट है यूपीएससी की, वहां पे निकलेंगी upsc.gov.in. एफकैट की fcat.cdac.in. ये आपको सारी इंफॉर्मेशन मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड इवन ऑन इंस्टाग्राम इफ यू आर फॉलोइंग इट, प्लीज only follow the official social handles of all these. So sari information, I hope it is clear to everybody now. So tomorrow if you want to know something, please don't text Sunana ma'am in the DM, ma'am I want to know this, ma'am all the information Janvi kahan milegi? Official website of joinindianarmy.nic.in. So Salam, Shweta, Chetna, please beta today open the website, go through every tab. You will see the medical tab also, कि what are the medical requirements for that. You will see all the entries over there, कि what are the entries, what are the notifications, exam कब होते हैं, forms कब निकलते हैं, all the information will be available on this website.
फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. प्लीज विजिट दैट. और आज एक बार आप पढ़ लोगे, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट. ठीक है, ओके, आई नो कि फ्रॉम वेयर टू टेक द इंफॉर्मेशन नाउ. फाइन. नाउ कमिंग टू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसर रैंक. ठीक है, दो तरीके से होती है बेटा एंट्री फौज के अंदर. एक रिक्रूटमेंट होती है अग्निवीर के थ्रू, जहां जवान भर्ती होते हैं. फाइन, वेयर यू गो एज अ सोल्जर. But the second entry is for officer rank, Army, Navy and Air Force. So when it comes to Indian Army बच्चों, so rank system थोड़ा basic है, पता होना चाहिए आपको. आपको यही नहीं पता होता कर्नल बड़ा होता है या ब्रिगेडियर बड़ा होता है. ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आपको इसमें जाना भी है और आपको बेसिक भी नहीं पता होगा तो ठीक नहीं है ना. So get it. So when you will visit the website also, you will get all the details over there. But still I will tell you, when you join as lieutenant, then captain, then you become major. After that you become lieutenant colonel. Lieutenant colonel तक हर कोई बनता है. उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर आपके नेक्स्ट रैंक्स अप्रूव होते हैं. तो कुछ लोग कर्नल बनते हैं, कुछ लोग नहीं बनते हैं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रहते हैं 25 साल की उम्र तक, फिर उसके बाद वो कर्नल बनते हैं. ठीक है, फिर कर्नल के बाद फिर आपका बोर्ड होता है, फिर आप ब्रिगेडियर बनते हैं, फिर आप मेजर जनरल बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल. इज दैट क्लियर? ये ऑफिसर रैंक है बच्चों, एंड दैट इज हाउ यू गो इन आर्मी. ऐसे ही जवान भर्ती होते हैं अग्निवीर के थ्रू. और भी बहुत क्लर्क्स की अलग अलग से वैकेंसीज निकलती हैं, बट जब अग्निवीर के थ्रू आप भर्ती होते हो तो सबसे पहले यू बिकम सिपाही. सिपाही के बाद आप लांस नायक बनते हो, नायक बनते हो, हवलदार बनते हो, नायब सूबेदार बनते हो, सूबेदार बनते हो, एंड देन यू बिकम सूबेदार मेजर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये इंफॉर्मेशन भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी. आई एम जस्ट गिविंग यू अ इन्फो ओवर हियर. Then comes to Indian Navy. In case any one of you is interested, so you go there as sub lieutenant, then lieutenant commander, commander, captain, commodore, rear admiral, vice admiral, and then admiral. Is that clear to everyone? Similarly, Air Force में आप जाते हो flying officer, flight lieutenant, squadron leader, wing commander, group captain, air commodore, air vice marshal, then air chief marshal. That is how you go in your ranks. Is that clear to everyone? Basic है, पढ़ लोगे तो थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको पता होगा. अब जब तुम जाते हो बेटा, स्टार्टिंग पे कमीशन अगर हम बात करते हैं अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से भी, तो जो आपकी बेसिक पे होती है वो आपको अराउंड 56,000 मिलती है. आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में ही सेम होती है. फिर उसके ऊपर आपको डीए मिलता है, कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, तो ओवरऑल आ जाती है बच्चों मतलब 1 लाख के करीब. ठीक है ना, मतलब 90,000 के करीब, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पोस्टेड हो ना. इतनी सैलरी एज अ यंग ऑफिसर आपको मिलती है. आपको ट्रेनिंग में भी मिलती है सैलरी. ठीक है, एनडीए में भी अगर जाओगे, एनडीए के अंदर आपको ग्रेजुएशन की कराई जाती है. ठीक है, सो व्हेन यू विल गो टू आईएम में, तो वहां भी आपको कुछ एक्सपेंसेस मिलते हैं. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड ऑल, बट अप्रोक्सीमेट सैलरी इतनी होती है यंग ऑफिसर व्हेन यू ज्वाइन एन आर्मी. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे अलग बेनिफिट्स होते हैं, बिकॉज आपको फ्री मेडिकल सर्विस मिलती है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, कैंटीन फैसिलिटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स. आपको कुछ भी करना हो, यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स ओवर देयर. ठीक है, सो ये बेसिक मैंने आप लोगों को नॉलेज दे दी बेटा. ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स. फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब आती है भाई फौज में जाना कैसे है. ठीक है, दैट एंट्री पाथवे आपका क्या होता है. ठीक है, सो आफ्टर 12th आप जा सकते हो. आफ्टर ग्रेजुएशन you all can go. There are few specialized entries also, like for doctors, for engineers, for law graduates, for NCC cadets. Fine, and then there is a अग्निवीर scheme also. मैं हर की बात करूंगी आप लोगों से. बहुत डिटेल्स में क्या क्या है you can see it on the website, but still I will tell you so that you have a broad picture clear. So after class 12th, in case if you want to go, like Janvi can go after class 12th. Now it is open for girls also. Janvi, recently it has started NDA. ठीक है, earlier in my time there was not even permanent commission also beta, but now permanent commissions are given to women officers. Fine, in case if you have any doubt about women entry, and you can ask me by the end of the session. So let's talk about NDA first. NDA you go after class 12th.
So all those who have already, in college or done your college, for you this entry won't be there, but knowledge हमेशा काम आती है. अपने youngsters को guide कर देना, तो सुन लेना प्लीज, ठीक है. So एक अच्छा ऑफिसर वही होता है जो अपने आँख कान नाक सब खोल के सुनता है. So that's another quality. Don't think like, oh मेरे लिए important नहीं है तो मैं नहीं सुनती. ठीक है, प्लीज लिसन. टुमारो योर जूनियर माइट आस्क यू, है ना. तो फिर ज्ञान कभी वो नहीं होता है, दे देना. ठीक है. सो बॉयज एंड गर्ल्स, यू ऑल आर एलिजिबल आफ्टर क्लास 12th. ठीक है. एयरफोर्स एंड नेवी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इज कंपल्सरी. फॉर आर्मी, any stream, be it commerce, be it arts, be it anything, because you have to fill an option in NDA form. You want to opt for Air Force, Navy or Army. Okay, in case if you want to opt for Air Force and Navy, then physics and maths is compulsory. But in case if you want to opt for Army, then any stream. But still I will guide you here. Please don't leave maths, because in NDA 300 marks ka paper is of maths only. So without maths, you won't be able to clear your written exam. So when it comes to the selection of NDA, it is through UPSC written exam. पहले आपका written exam होगा, then आपका SSB होगा. जो आपका जो written clear करता है उसका SSB होता है. All those who clear their SSB, then they go for their medicals. And once you clear your medical, then after that there will be a final merit list which is made, and then you go and join the academy in case if you make it to the final merit list. Is that clear to everyone?